ایران کے شہید سپریم کمانڈر آیت اللہ خامنائی کے الوداعی مراسم میں پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت کی شرکت۔ وزیر اعظم شہباز شریف، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر تہران کے مصلی امام خمینی پہنچے، شہید کے درجات کی بلندی کی دعا کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ایرانی صدر مسعود پزشکیان، باقر قالیباف اور عباس عراقچی کو پرسہ دیا۔ مسعود پزشکیان اور عباس عراقچی نے فیلڈ مارشل کو گلے لگایا۔ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل نے شہید سپریم کمانڈر کو خراج عقیدت پیش کیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی، اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق، چیئرمین پی پی بلاول بھٹو زرداری، وزیر داخلہ محسن نقوی، عطا تارڑ، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ سمیت دیگر شخصیات کی الوداعی مراسم میں شرکت۔ وزیر اعظم شہباز شریف استنبول پہنچ گئے۔ اتاتورک ایئرپورٹ پر ترک وزیر تجارت، پاکستانی سفیر اور دیگر نے استقبال کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور ترک صدر کی ملاقات میں دو طرفہ تعلقات، خطے میں امن تر بات ہوگی، تجارت اور سرمایہ کاری کے شعبوں میں تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف پاکستان کی میزبانی میں بزنس کانفرنس سے خطاب کریں گے۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار، وزیر اطلاعات عطا تارڑ بھی وزیر اعظم کے ہمراہ ہیں۔ خصوصی اقتصادی زونز، توانائی، آئی ٹی، نجکاری سمیت دیگر شعبوں میں سرمایہ کاری پر گفتگو ہوگی۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی تہران میں ایرانی قیادت سے ملاقاتیں۔ فیلڈ مارشل نے وزیر خارجہ عباس عراقچی سے ملاقات میں شہید رہبر معظم سید آیت اللہ خامنائی کی ایران کے لیے خدمات کو زبردست خراج عقیدت پیش کیا۔ فیلڈ مارشل نے ایرانی وزیر دفاع سید ماجد ابن رضا سے بھی ملاقات کی۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر شہید خامنائی کے الوداعی مراسم اور اہم ملاقاتوں کے بعد وطن واپسی کے لیے روانہ ہو گئے۔ ایرانی وزیر داخلہ سکندر مومنی اور اعلیٰ سول ملٹری حکام نے الوداع کیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی تہران میں ایرانی ہم منصب سکندر مومنی سے ملاقات ہوئی۔ دو طرفہ امور پر گفتگو، خطے کی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال۔ ایران کے سپریم لیڈر علی خامنائی کے آخری مراسم جزدقہ کی مصلی امام خمینی کمپلیکس میں موجود ہے۔ الوداعی تقریب میں رقت آمیز مناظر، ہر آنکھ اشکبار، فضا سوگوار۔ شہید کے جزد خاکی کو روضہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سرخ پرچم میں لپیٹا گیا۔ سعودی نائب وزیر خارجہ عراق اور کرغزستان کے صدور بھی شریک ہوئے۔ بنگلہ دیشی وقت، فلسطینی علماء اور حزب اللہ کے شہید رہنماؤں کے ورثہ بھی دعائیہ تقریب میں شریک ہوئے۔ پاکستانی علماء نے بھی تعزیتی اجتماع میں شرکت کی۔ 100 ممالک کے مہمان شہید رہبر معظم کے الوداعی مراسم میں شرکت کر رہے ہیں۔ ہفتہ اور اتوار کو عوام شہید سپریم لیڈر کا آخری دیدار کر سکیں گے۔ جزد خاکی جلوس کی شکل میں قم، نجف اور کربلا کے بعد مشہد لے جایا جائے گا، جہاں 9 جولائی کو تدفین ہوگی۔ شہید آیت اللہ خامنائی کے داماد شہید ڈاکٹر مصباح باقری کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ پاکستان اور ایران کی محبت دو طرفہ ہے۔ یہ محبت نہ ہوتی تو ہم کبھی بھی پاکستان کی ثالثی قبول نہ کرتے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی کی تہران میں ایئر وائی نیوز سے خصوصی گفتگو۔ کہا ثالثی میں بہترین کردار پر پاکستانی حکومت اور عوام کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ دونوں ممالک کی دو طرفہ محبت ہمیشہ قائم رہے گی۔ ایئر وائی نیوز کی ٹیم تہران میں موجود۔ شہید سپریم لیڈر کے آخری رسومات پر ایئر وائی نیوز کی خصوصی کوریج 9 جولائی تک جاری رہے گی۔ چین کا اعلیٰ سطح کا وفد آیت اللہ خامنائی کی الوداعی تقریب میں شرکت کے لیے تہران پہنچ گیا۔ چینی پیپلز کانگریس کے نائب صدر نے ایرانی پارلیمانی اسپیکر باقر قالیباف سے ملاقات کی۔ باقر قالیباف نے کہا، چین ایک ایسا ملک ہے جو مشکل حالات میں ہمارے ساتھ کھڑا رہا۔ آبنائے ہرمز میں چینی جہازوں کی آمد و رفت سے متعلق مسائل حل کر دیے۔ چین اور ایران کے درمیان اسٹریٹجک تعلقات کو مزید فروغ دیں گے۔ امریکی اخبارات کا ایرانی مذاکرات کاروں کو قتل کرنے کی سازش کا انکشاف۔ نیو یارک ٹائمز اور واشنگٹن پوسٹ نے اپنی رپورٹ میں بتایا، اسرائیل نے ایرانی مذاکرات کاروں کو نشانہ بنانے کا منصوبہ بنایا تھا۔ امریکی حکام کا خیال تھا اسرائیل نے رواں سال کے آغاز میں مذاکرات کے دوران
ईरानी मुज़ाकरात कारों को कत्ल करने की मंसूबा बंदी की थी। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची और ईरानी चीफ मुज़ाकरात कार बाकिर कालिबाफ को कत्ल करने का मंसूबा बनाया था। अमरीका ने मशरिक़ वस्ता के कई ममालिक के जरिए ईरान को मुमकिना खतरे से खबरदार रहने का पैगाम पहुंचाया। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। पेट्रोल की कीमत में ₹1.97 फी लीटर कमी ₹97 फी लीटर कमी की गई है। तफसील जानते हैं अलीम मलिक से। अलीम बताइएगा। जी, वफाकी हुकूमत ने जो पेट्रोलियम मसनूआत हैं जिसमें पेट्रोल और डीजल है उसकी कीमत में ₹1.97 फी लीटर कमी कर दी है। दीगर जो मसनूआत हैं मट्टी का तेल और लाइट डीजल उनकी कीमतों में भी कोई तफसीलात सामने नहीं आई हैं। जो आलमी मार्केट के हिसाब से तो कमी ज्यादा बनती थी, लेकिन बहरहाल हुकूमत ने ₹1.97 पेट्रोल और डीजल की कीमत में कमी की है, जिसके बाद जो पेट्रोल है उसकी जो नई कीमत है वो ₹297.53 हो गई है, जबकि जो हाई स्पीड डीजल है उसकी कीमत ₹309.50 फी लीटर हो गई है। नई कीमतें जो है वो रात 12 बजे से उनका इतलाक कर दिया गया है और ये जो नई कीमतें हैं ये आइंदा एक हफ्ते के लिए नाफिज रहेंगी। जी, मुश्किल वक्त में नेटो ने साथ नहीं दिया। अमेरिका नेटो पर यूरोपीय इत्तेहादियों के मुकाबले में कहीं ज्यादा खर्च कर रहा है। सदर ट्रंप की फिर इत्तेहादी मुल्कों पर तनकीद। ट्रूथ सोशल पर लिखा, नेटो में दिफाई अखराजात की तकसीम मुज़हकाखेज है। अमेरिका ने 2014 से 2025 के दौरान $999 अरब खर्च किए, जो सबसे ज्यादा रकम है। एक इंटरव्यू में सदर ट्रंप का कहना था, भारत और पाकिस्तान के दरमियान जंग रोककर 3 करोड़ जानें बचाई। हाल ही में ईरान का नया रडार सिस्टम दोबारा उड़ा दिया। अब ईरान के पास कोई रडार नहीं। लाहौर में गैर मुल्की खवातीन से ज्यादती और अगवा केस की तफ्तीश। पुलिस जराये का कहना है गैर मुल्की खवातीन और मुलजिम अहमद रजा डार के दरमियान क्रिप्टो करेंसी का तनाजा। मुलजिम अहमद रजा डार ने खवातीन से 15 लाख अमरीकी डॉलर वसूल करने थे। क्रिप्टो करेंसी की ये रकम पाकिस्तानी रुपयों में 45 करोड़ रुपए बनती है। मुलजिम अहमद रजा डार ने खवातीन को बहाने से पाकिस्तान बुलवाकर अगवा का ड्रामा रचाया। मुलजिमान अहमद रजा डार, हसन रजा, सिकंदर अजीज खान और साजिद अली का 5 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। इसाक डार के करीबी अजीज पर लाहौर के डिफेंस थाने में मुकदमा दर्ज है। लाहौर में गैर मुल्की खवातीन से ज्यादती। फैसल वाबडा ने नायब वजीर आजम इसाक डार से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। कहा, कुछ जमहूरी जनाजे सालों से मुल्क को लूटने के बाद अब इज्जतें भी लूट रही हैं। केस को रेप के बजाय भत्ताखोरी तक महदूद करने की कोशिश जारी है। पहले ही कहा था, कुछ पाकिस्तानियों के इंटरनेशनल स्कैंडल्स और वीडियोज मंजर-ए-आम पर आएंगी। पाकिस्तान को फैमिली कॉरपोरेशन की तरह चलाया जा रहा है। हम जमहूरी लोग इस हद तक गिर चुके हैं कि माँ, बहन और बेटी का फर्क भी भूल गए हैं। पाकिस्तान के इमेज का जरा सा भी एहसास है तो इसाक डार फौरी ओहदे से इस्तीफा दें। शर्मनाक इल्जाम के बाद कौन इसाक डार के साथ पाकिस्तान के झंडे तले खड़े हो सकता है? काना के अलमनाक हादसे पर मेरा दिल खून के आंसू रो रहा है। वहां पर गफलत तो हुई, लेकिन वालिदैन भी रजिस्टर्ड सेंटर्स में बच्चों को भेजें। अगर आप अपने घरों में महफूज नहीं तो मैं नाकाम हूं। अगर कोई बच्चा गटर में गिरकर मरता है तो वो मेरी जिम्मेदारी है। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की कहना आमद। जाँ बहक बच्चों के वालिदैन से मुलाकात, ताज़ियत का इजहार किया। जाँ बहक और जख्मी होने वाले बच्चों के वालिदैन में चेक तकसीम किए। कहा, दुख की घड़ी में मुतासरा खानदानों के साथ खड़े हैं। सिर्फ इमदाद देना काफी नहीं, यहाँ के मसाइल को भी हल होना चाहिए। अवाम को हैसियत न देने का तर्ज अमल तर्क करना पड़ेगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की कहना, हादसे में जाँ बहक बच्चों के अहल खाना से मुलाकात के बाद गुफ्तगू। कहा, यह वजीर आजम का हल्का है और यहाँ स्कूलों की इमारतें मखदूश हैं। हुक्काम बताएं पंजाब में कितने स्कूलों में सहूलतें हैं। जमात इस्लामी मुतासरीन की मदद करेगी। बलूचिस्तान के जिला शिरानी में बस खाई में गिरने से 40 अफराद जान से गए, मुतादिद जख्मी। हादसा दाना सर पर पेश आया। वजीर आला बलूचिस्तान के मुआविन खुसूसी शाहिद रिंद ने बताया, हादसा ओवर स्पीडिंग और ओवरलोडिंग के बाइस पेश आया। एक जख्मी मुसाफिर के मुताबिक मुसाफिर से झगड़े के बाद ड्राइवर ने जानबूझकर बस खाई में गिराई। सदर जरदारी और वजीर आजम का जानी नुकसान पर इजहार अफसोस।
खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने झील सैफुल्ला में कश्ती हादसे की तहकीकात के लिए कमेटी बना दी। 7 रोज में रिपोर्ट और सिफारिशात पेश करने की हिदायत। लाइफ जैकेट्स, रेस्क्यू आलात और मुसाफिरों के हिफाजती इकदाम की जांच होगी। कश्ती चलाने वाले शख्स की इजाजत, अहलियत और लाइसेंसिंग की भी तहकीकात होंगी। 1 जुलाई को कश्ती डूबने से लाहौर के खानदान के 7 अफराद लुकमा अजल बने। अमेरिका से आई लड़की की लाश ताहाल नहीं मिली। हुकूक के लिए कश्मीर के लोग हमारे पास आए हैं, क्या ये उनके पास जाएंगे जो महरूमियों के जिम्मेदार हैं? जो पहले महरूमियां दूर ना कर सके वो अब क्या करेंगे? इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी के सदर अलीम खान की सरदार तनवीर इलियास के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, आजाद कश्मीर के बच्चों को 100% तालीम दी जाएगी। आजाद कश्मीर में जो करप्शन में मुलव्वस पाया गया वो वजीर नहीं रहेगा। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी आजाद कश्मीर की इस्लामाबाद में लॉन्चिंग तकरीब। साबिक वजीर आजम आजाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास ने कहा, अवाम को बिजली 3 रुपए यूनिट देना किसी तौर पर भी काबिल अमल नहीं। वफाकी हुकूमत कल ये मराद वापस लेगी तो फिर से शदीद मसला खड़ा होगा। आजाद जम्मू कश्मीर की कानून साज असम्बली के इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी की वापस में 1 दिन की तौसी। उम्मीदवारान कागजात नामजदगी कल तक वापस ले सकते हैं। हतमी उम्मीदवारों की फहरिस्त 5 जुलाई को जारी होगी। इंतखाबी निशानात 6 जुलाई को अलॉट किए जाएंगे। सिंध के सीनियर वजीर शरजील मेमन से वफाकी वजीर राना कासिम नून की मुलाकात। आजाद जम्मू कश्मीर की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों, कश्मीरी आवाम पर भारतीय मजालिम की मजम्मत। शरजील मेमन का कहना था, कश्मीर जैसे कौमी मफाद के मामलात पर विफाकी और सूबाई इदारों में करीबी राब्ता नागुज़ीर है। मसला कश्मीर पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का बुनियादी सुतून और पूरी कौम का मुतफिक का मौक़िफ़ है। भारत अपने अंदरूनी मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम फैलाने पर लगा हुआ है। मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के साथ आला सिक्योरिटी ओहदेदार की भारत के मौजू पर अहम नशिस्त। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक भारतीय क़यादत जमीनी हकाइक तस्लीम करने से गुरेजा है। हिंदुत्वा नजरिए ने भारत के सेकुलर चेहरे को मस्क कर दिया है। तकसीम शुदा मुआशरे की मौजूदगी में भारत के शाइनिंग इंडिया होने का नारा ढकोसला है। मकबूजा कश्मीर के आवाम दुनिया की बड़ी फौजी छावनी में महसूर हैं। पाकिस्तान के इस्तेहकाम तरक्की को हिंदुत्व के पैरोकार अपनी मौत समझते हैं। कल अदम ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी की सरकर्दा लीडरशिप भारतीय एजेंडे पर अमल पैरा है। पाकिस्तान और इसकी आवाम भारत से न कभी मरूब थे और न ही कभी होंगे। भारत में राम मंदिर से मुतालिक बदअनवानी की तहकीकात। मोदी और आरएसएस का सियासी गठजोड़ सामने आ गया। ब्लूमबर्ग के मुताबिक मंदिर को नकद रकम, सोना चांदी के जेवरात की सूरत में माहाना 40 से 100 मिलियन रुपए तक मिलने के एहतियात में करप्शन की गई। भारतीय तज्जियाकार का कहना था, राम मंदिर के एहतियात आरएसएस के खजानों में मुंतकिल किए गए। देवार ने कहा, भारतीय हुकूमत ने बाबरी मस्जिद शहीद करके अतराफ में कब्जा करके राम मंदिर तामीर किया था। माजी के वाकयात से सबक सीखा, शहरी सहूलतें बेहतर बना रहे हैं। मेयर कराची मुर्तजा वहाब की गुलिस्तान जौहर में फायर स्टेशन के इफ्तिताह के मौके पर गुफ्तगू। कहा, 30 साल बाद फायर स्टेशन तामीर किया गया है। फायर स्टेशन की बहाली के साथ मशीनरी और आलात को भी अपग्रेड किया जा रहा है। पीपल्स पार्टी शहर को मजीद बेहतर बनाएगी। वेनेजुएला में हौलनाक जलजले के सबब होने वाली अमवात 2595 हो गई। लागोयरा में बेशतर सरकारी एहलकार जलजले में जान से गए। 189 इमारतें मलबे का ढेर बन गई। सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। यूरोप में शदीद गर्मी की लहर बरकरार। फ्रांस, बेल्जियम और नेदरलैंड्स में 3700 से ज्यादा अमवात। ज्यादातर मरने वालों की उम्रें 80 साल से ज्यादा थी। फ्रांस में रिकॉर्ड गर्मी के सबब एक हफ्ते में 2005 अमवात रिकॉर्ड। हमारे पास टॉप लेवल का कोई क्रिकेटर नहीं, जबरदस्ती किसी को एक कैटेगरी में नहीं डाल सकते। हम होम ग्राउंड पर जीतना ही भूल गए थे। मेरे फॉर्मूले की वजह से पाकिस्तान 4 टेस्ट जीता। पीसीबी डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस आकिब जावेद की प्रोग्राम स्पोर्ट्स रूम में गुफ्तगू। कहा, लीग्स की वजह से पाकिस्तान की क्रिकेट सबसे ज्यादा मुतासिर हुई। चैंपियंस ट्रॉफी में नाकामी बड़ा धचका साबित हुआ।
اور چاندی کی قیمت میں اضافہ، فی تولہ سونا 12,200 روپے اضافے سے 4,40,936 روپے کا ہو گیا۔ عالمی مارکیٹ میں $122 بڑھ کر فی اونس سونا $4,185 پر، فی تولہ چاندی 319 روپے اضافے سے 6,764 روپے کی ہو گئی۔